Yes, hello Pawan, hello Mandeep, hello Rasika. Will you able to hear my voice? Hello. Please type yes in the chat box. Hello guys, will you able to hear me? Please type yes. Yes, ma'am. Okay. Thank you, Rasika. Yes. Yes, hello guys. Where are you from? Type in the chat box till that time. We'll just wait for 2 more minutes. Let everyone join. Yes, Mandeep. Hello, hello. Today we will learn about very important topic about English grammar, that is tense. So it is a very important topic whether you are a student, whether you are trying to attend any competitive exam. This is a very important topic for all of them who want to learn English, who want to speak English. Okay. So today we will learn this topic. Yes. Come on, everyone, join fast. I hope you guys are listening properly, my voice. Yes. Okay. You can see the screen as well. You guys can see the screen. Let me know. Okay. Yes. Yes, yes. NVV joined. Okay. Okay, so hello everyone. कैसे हो सब लोग? First of all, I just wanted to tell you that my name is Prachi and uh, today I am a trainer. We are starting new course like for spoken English program. In that program we are going to take all the basic concept of English grammar. So if you really want to improve your grammatical concept and you want to learn this in deep and conceptually, so this course is for you. So this course will start from 3rd April, so be sure to register in it. Okay, so today class is free for all of you to know what we are taking in the our uh, main course. Okay. Yes. Okay, so guys, let's start with the course. Let's start with the today's class. Okay, so our today's topic is what is tense. Okay, आज हम tense के बारे में सीखने वाले हैं. टेंस क्या होते हैं? टेंस इज इक्वल टू टाइम. टेंस मतलब क्या होता है? टाइम होता है. तो टाइम हमारे होते हैं 3 प्रकार के, राइट? सुबह, शाम और जो हम अभी होते हैं ये ऐसा. तो ऐसे अगर 3 टाइप के टाइम होते हैं तो हमारे ये जो टेंस होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, ये आप जानते होंगे. सो हमारे 3 मेन टाइप ऑफ टेंस होते हैं, जो होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके, सो प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है जिसे हम कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसे हम कहते हैं भविष्य काल. ओके, सो हम वन बाय वन टेंस सीखने वाले हैं, तो बी देयर इन द क्लास. Okay guys, and if you have any question you can write down in the chat box. Okay. Yes, so let's start with the first one. But before that, before starting the tense, you should know about the 3 important rules or 3 important grammatical concepts of English grammar. Okay, so that is उसमें से पहली है ग्रामेटिकल पर्सन. ओके, तो ये ग्रामेटिकल पर्सन क्या होते हैं? आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ऐसे 3 प्रकार के ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं इंग्लिश में. अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, मी. ओके, मैं, हम बोलते हैं ना कि मैं, हम,
तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन यानी तुम या आप, हिंदी में हम उसे तुम या आप कहते हैं, मतलब इंग्लिश में तुम या आप के लिए एक ही वर्ड होता है यू। ओके, सो सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है वो, वह, वे, उसमें सारे आ जाते हैं, आई, वी, मी और यू के अलावा जो भी होता है वो सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, सिस्टर, ब्रदर, टेबल, चेयर, सीता, रमेश। सीता, रमेश मतलब ऐसे नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम इसमें आ जाते हैं, ही, शी, इट, किसी भी वस्तु के नाम इसमें आ जाते हैं। तो थर्ड पर्सन यानी सारे वस्तुओं के, व्यक्तियों के नाम। ओके, सो ही, शी, इट जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाती है। तो आई होप आपको ग्रामेटिकल पर्सन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कि फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी और मी भी आता है उसमें। सेकंड पर्सन होता है यू, सेकंड पर्सन एक ही होता है, मतलब यू, तुम या आप। और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, सिस्टर, ब्रदर। ओके, ये सब होता है। वन जस्ट सेकंड, आइडियल टाइम यू हैव बीन inactive for, okay, yes, guys, you can hear me properly, just type in the chat box that you guys can able to hear me. Okay, so let's see the next slide. Yes, सो सेकंड हमारा रूल होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी, यस, ओके, थैंक यू गुरनिवाज, थैंक यू। यस, सेकंड होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट यानी क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो व्यक्ति एक्टिवली पार्ट कर रहा है उस सेंटेंस में, उसे हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, उसे हम कर्म कहते हैं यानी ऑब्जेक्ट। और वर्ब यानी क्रिया, जो क्रिया हो रही है उसे हम कहेंगे वर्ब। ओके, सो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, कर्ता, कर्म एंड क्रिया, ऐसे तीन चीजें होती है हर सेंटेंस में, ये तीन चीजें होती है। ओके, अभी देखिए आपको डिटेल में ये मैं बताती हूँ कि कर्म क्या है और कर्ता किसे कहेंगे। ओके, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, क्योंकि काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ काम। ओके, सो मैं, ये हुआ सब्जेक्ट। फुटबॉल की, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं, फुटबॉल। तो जिस पर हम काम कर रहे हैं वो होता है ऑब्जेक्ट, मतलब फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और खेलना, ये क्या हुआ, वर्ब। खेलना, जंप करना, ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ये सारी वर्ब में आती है। तो खेलता हूं ये हुआ वर्ब। ओके, खेलना ये हुआ वर्ब। तो नॉर्मली हम जो हिंदी सेंटेंस या तो फिर कोई भी भाषा के सेंटेंस हम बनाते हैं, तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ये ऊपर वाला होता है सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट और बाद में वर्ब आता है। बट व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट तो ऐसे ही रहता है एज इट इज। अभी मैं का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है गाइस, थोड़ा देखिए कि देखो, खेल, ऊपर के सेंटेंस में वर्ब जो लास्ट में था वो इंग्लिश के सेंटेंस में आ जाता है सेकंड नंबर पे। सो सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ऐसे हमारा जो इंग्लिश का होता है सेंटेंस वो होता है। सो हमारा मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इस सेंटेंस का इंग्लिश हुआ आई प्ले फुटबॉल। ओके, आई प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे सारी चीजें। ओके, सो डोंट वरी। ओके, तो अब देखिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब।
तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहाँ पे जो रूल में बताया गया है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हर बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहता है, बट ये वर्ब है ना बीच में, प्ले, तो ये वर्ब हमेशा चेंज होता है। जैसे ही हमारा टेंस चेंज होता है, हमारा वर्ब भी चेंज होता है। तो ये हम सीखेंगे। अब सबसे पहले ये जान लिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते क्या है और किस तरीके से हम इसको कहते हैं, और मतलब क्या होता है ये एग्जैक्टली exactly। तो देखिए यहाँ पे हमारे मेन 4 टाइप के वर्ब्स हमने यहाँ पे बताए हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, ये एक वर्ब हुआ। प्ले मतलब खेलना, ये एक वर्ब हुआ। उसका पास्ट फॉर्म अगर हमें बताना है, मतलब भूतकाल में बताना है, तो प्ले का हो जाता है प्लेड। ओके, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है प्लेड। और मैं खेल रहा हूं, ऐसा अगर हमें बोलना है कंटिन्यूअस टेंस में, तो हो जाता है प्लेइंग, मतलब प्ले को आईएनजी लगता है। ओके, तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब ना आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। डोंट वरी, हमारे कोर्स में आप अगर एनरोल करते हैं तो वहां पे आपको सारे कोर्स सारे वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको पता है, जब हम मैथ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टेबल्स लर्न करते हैं, राइट। टेबल्स के बिना हम मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकते। तो वैसे ही अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी है और अच्छे से समझनी है, तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो लिस्ट होती है ना, वो आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करनी है, समझनी है पूरी। तो जितने ज्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको पता होंगे, उतनी जल्दी जल्दी आप सेंटेंस बना पाओगे। तो डोंट वरी, आपके हमारे कोर्स में आपको पूरी तरीके से फॉर्म्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। आपको बस उसे लर्न करना है और इंग्लिश सीखनी है। ओके ओके, सो नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, राइट। राइट का मीनिंग होता है लिखना। ओके, सो राइट ये एक वर्ब है। राइट का सेकंड मतलब पास्ट फॉर्म होता है रोट। राइट, रोट। थर्ड फॉर्म होता है रिटन, और फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग। ओके, फोर्थ फॉर्म को हमेशा मेन वर्ब को आईएनजी लगाना होता है, बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ईट। ईट मतलब क्या, खाना खाना। ओके, ये सारे वर्ब्स होते हैं, खाना पीना सोना उठना, ये सारी जो एक्टिविटीज होती है उन्हें वर्ब कहा जाता है। सो ईट मतलब खाना खाना, ये भी एक एक्टिविटी है, राइट। तो ईट को ईट का हमारा पास्ट फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन, एंड देन ईटिंग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ रहा है। आई एम Yes, yes. Gurnivaz is asking that, ma'am, is this class is about spoken English? Yes, this class is about spoken English. यहाँ पे आपको डिटेल में स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाएगी। ये आज का क्लास फ्री है आप सबके लिए, कि आपको आइडिया आ जाए कि हमारे क्लास में किस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये बेसिक से पता है, जिसको थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आता है, वो भी अगर ये कोर्स करता है तो आप एकदम डिटेल में इंग्लिश सीख सकते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको बेसिक इंग्लिश से ही इंग्लिश सीखना है तो दिस कोर्स इज फॉर यू। यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं और कम्युनिकेशन स्किल की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, आई होप गुरनिवाज मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। यस, ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो देखो, अभी हमारे टेंस होते हैं पूरे 12 तरीके के। ओके, टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 ऑप्शंस आते हैं। ये बताने के लिए, ओके, मैं साउंड इंक्रीज कर देती हूँ। मैंने तो फुल साउंड कर दिया है। आई होप अब आपको सारा आपको आवाज अच्छी आ रही है। ओके, यस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये बताते समय मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, कि फॉर एग्जाम्पल, टेंस ये कौन है, ये मुखिया है, घर के मुखिया है टेंस, और उनके हैं 3 बच्चे, जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
ये टेंस के 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके भी हर प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं, पास्ट के 4 बच्चे हैं और फ्यूचर के 4 बच्चे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे टेंस आप आसानी से किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखो, यहां से आ गया सिंपल और ऊपर से आ गया प्रेजेंट, मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट। बाद में कंटिन्यूअस, सो ऊपर से आ गया प्रेजेंट, नीचे से आ गया कंटिन्यूअस, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गई प्रेजेंट की फैमिली। ओके, सो ये हो गई प्रेजेंट की फैमिली। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट की फैमिली। पास्ट में सिंपल पास्ट, यहां से आ गया सिंपल, लेफ्ट से आ गया सिंपल, ऊपर से आ गया पास्ट, हो गया सिंपल पास्ट। बाद में पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गई पास्ट की फैमिली। ओके, देन हम देखेंगे फ्यूचर। फ्यूचर, लेफ्ट से आ गया सिंपल, ऊपर से आ गया फ्यूचर, हो गया सिंपल फ्यूचर। बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप ये इस तरीके से अगर आप याद रखोगे ना कि स्टोरी के जैसे कि एक मुखिया है, टेंस, उसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हर किसी के 4 बच्चे हैं जिनका नाम है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको ये चार्ट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आप ये कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको ऐसे बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे जिससे आसानी से आप इंग्लिश समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल, इसे इनडेफिनाइट टेंस भी कहा जाता है। ओके, लेट्स सी। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उनमें ऐसे वाक्य आते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं रोज कसरत करता हूँ, पृथ्वी गोल घूमती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या होता है, जहां पे हमें रेगुलर फैक्ट्स बतानी होती है। ओके, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रेगुलर फैक्ट्स। रेगुलर चीजें जो हमारे डेली रूटीन में हम जो करते हैं ना, वो सारी चीजें हम सिंपल प्रेजेंट में बता सकते हैं। उसके बाद हैबिट, हमारी जो आदतें होती है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं। उसके बाद हमारा जो रूटीन होता है, डेली का रूटीन, तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में बता सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्स भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं। अब ये देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, मेरी रेगुलर चीज है वो कि मैं हमेशा खेलता हूँ, मेरा रूटीन है। ओके, सो ऐसे सेंटेंस हम बता सकते हैं। मैं रोजाना कसरत करता हूँ, तो ये मेरी हैबिट हो सकती है, मेरा रूटीन हो सकता है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है फैक्ट्स। पृथ्वी गोल घूमती है, ये क्या है, फैक्ट है, पृथ्वी गोल ही घूमती है। तो इस तरीके के फैक्ट्स, इस तरीके का डेली रूटीन अगर आपको बताना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके हम, मैम नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं। यस, एनवीवी पूछ रहे हैं कि मैम आप नोट्स देंगे। यस, डेफिनेटली आपको सारे चार्ट्स मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। बट उसके लिए आपको एनरोल करना होगा। 3 तारीख से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और फिर हम जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो हम ये जरूर आपको सारे नोट्स मिलेंगी, सारे चार्ट्स टाइम टू टाइम मिलेंगे। ओके, डोंट वरी। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस कि मैं स्कूल जाता हूं। तो ये क्या है ना, रेगुलर रूटीन है हमारा, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी देखिए, आई ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, गो ये हो गया वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू स्कूल ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब नीचे का सेंटेंस आप देखिए, नीचे का सेंटेंस है शी गोज टू स्कूल।
अब आप पूछेंगे कि मैम ऊपर तो आपने आई गो टू स्कूल लिखा है, फिर शी गोज टू स्कूल क्यों आया है? तो ये रूल है, इंग्लिश ग्रामर का ये पहला रूल है जो आपको इस चार्ट में समझ में आएगा कि जब भी आई वी यू दे से सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है तो मेन वर्ब आता है, और जब ही शी इट या कोई भी नाम होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर ही शी इट या कोई नाम मतलब गीता सीता ऐसा कोई अगर नाम है तो आप हमेशा वर्ब को एस या ईएस आप लगा सकते हैं, मतलब लगाना ही है आपको। ओके, हम और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, वी स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मतलब हम इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रीटा स्पीक्स इंग्लिश, रीटा इंग्लिश बोलती है। तो रीटा अभी जस्ट हमने रूल देखा यहाँ पे पीछे कि जब सेंटेंस में ही शी इट या कोई नाम आता है तो वर्ब को एस या ईएस लगाना है, राइट। तो यहाँ पे आ गया नाम रीता, तो हमने स्पीक का स्पीक्स कर दिया, गॉट इट। रीटा स्पीक्स इंग्लिश। उसके बाद है यू ईट अ मैंगो, यू सब्जेक्ट हमने क्या सीखा है, फिर से मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ कि आई हुई यू दे जब आता है, सब्जेक्ट जब आई हुई यू दे है तो मेन वर्ब ही आता है सिर्फ, बट अगर ही शी इट या कोई नाम आता है तो एस या ईएस हमें लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे सिर्फ यू ईट मैंगो आया है तो हमें ईट को एस लगाने की जरूरत नहीं है, बट नीचे ही के साथ हमने सेंटेंस बनाया है तो ही के साथ हमने ही ईट्स अ मैंगो लिखा है। ओके, और अगर अभी ही के साथ कोई और वर्ब यूज करके आप मुझे कमेंट में बताइए कुछ सेंटेंस आपकी तरफ से। ओके, तब तक मैं आगे चलती हूँ, बट आपके दिमाग में अगर कोई सेंटेंस है तो आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं यहाँ पे पढ़ सकूं और बता सकूं। बट याद रखिए कि ही शी इट या किसी का नाम लिख रहे हैं तो आपको वर्ब को एस या यस लगाना है, और नॉर्मल है मतलब आई वी यू दे है तो आपको वर्ब को एस या यस लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको याद रखना है। गॉट इट। अब ये समझिए कि मैम आपने बताया कि एस या ईएस लगाना है, बट एस किसको लगता है और ईएस किसको लगता है, ये भी बहुत लोगों को सवाल होगा, तो वो समझ लेते हैं पहले। अगर वर्ब के आखिर में ओ एस एस एच सी एच या एक्स होगा तो ईएस लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गो लगा, ओ लगा है लास्ट में तो क्या आएगा, ही, मतलब आई गो है तो उसका जब ही के साथ हम यूज करेंगे तो आएगा गोज, मतलब ईएस लगता है। ओके, हमने क्या देखा अभी, अगर वर्ब के आखिर में ओ एस एस एच सी एच या एक्स होगा तो ईएस आएगा, तो यहाँ पे गो के साथ आएगा गोज, आई राइट के साथ आएगा ही राइट्स, क्योंकि लास्ट में क्या आया है हमारा ई आया है, राइट राइट। उसके बाद है आई टीच, आई टीच लास्ट में क्या आया है सी एच, तो ही टीचेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि WRITE राइट हमने लिखा है तो ई तो पहले से ही है, तो मतलब क्या है कि ओ एस एस एच सी एच में से कुछ भी नहीं लगा है तो हमने सिंपली यहाँ पे एस लगाया है। आई होप आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एस लगा है, बाकी हमने ईएस लगाया है, और यहाँ पे भी सी एच आया है, यहाँ पे सी आया है तो हमने क्या लगाया है ईएस लगाया है, ओ आया है तो लगाया है
ES लगाया है, ओके, बट यहाँ पे सिर्फ E है तो हमें S लगाया है। ये हमेशा याद रखना है, अगर वर्ब के आखिर में OS, SH, CH या X होगा तो ES लगा है। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अगर वर्ब के आखिर में Y होगा, Y की जगह I करके हम EX लगाना, हमें EX लगना है, ओके। तो ट्राई का हो ट्राइज, फ्लाई का होगा फ्लाइज, गॉट इट? यहाँ पे मतलब क्या है, अगर वर्ब के आखिर में Y होगा तो Y की जगह I करके ES लगाना है, ओके। तो ट्राई क्लास में आता है Y, तो Y हटा के हमने का भी I निकाल के क्लास किया है, बट अब में Y के पहले स्वर होगा, ये आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। तो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो अगर वर्ब में Y के पहले स्वर होगा, यानी ए ई आई ओ यू होगा, तो Y की जगह I नहीं आता, सिर्फ उसके बाद S लगाना होता है, ओके। Y का होगा 22, डे का होगा डेज, ओके, गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। हमने पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस लिए, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। आई गो टू स्कूल, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। आई गो टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव करते वक्त हमें सिंपल सेंटेंस में आता है, ओके, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ऐसा हम कर सकते हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके, आई होप मेरी क्लियर ही है सबको। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल का क्या होगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल, ओके। आई होप अब आवाज आ रही है, थोड़ा सा कुछ यस, ओके। सो आई गो टू स्कूल का निगेटिव करते वक्त होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद गोज टू स्कूल का निगेटिव करते वक्त होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये लोगों को, ओके। तो ये आपको हमेशा समझना है कि निगेटिव सेंटेंस करते वक्त आपको डोंट या डजंट का आप यूज कर सकते हैं, ओके।
ओके, निगेटिव सेंटेंस के बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। He lives here. He lives here. वो यहाँ पे रहता है। उसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना हो तो क्या हो? Does he live? Does he live here? ऐसा के बाद they play cricket. They play cricket मतलब वो क्रिकेट खेलते हैं। इसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप डू दे क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट या खेल रहे हैं? ओके, इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक रूल है जो मैं आपको बताती हूँ। यस, हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी एनवी स्ट्रक्चर मैम सेंटेंस के, तो ये भी हम करने वाले हैं पूरा सेशन इंट्रोडक्शन। हम पहले ये समझ लेते हैं, देन विल गो विद स्ट्रक्चर एज वेल। ओके एनवी? यस, तो करवा कि जब हमें इंट्रो करना होता है, ही लीव हियर, उसके बाद क्रिकेट का इंट्रो है, प्ले क्रिकेट। यहाँ भी एक रूल है आपको समझना है। जब हमारे वाक्य में ही इट है तो शुरू करनी होती और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और जब तभी सेंटेंस में आई होते हैं तो डू से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारी क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो लोग नए आए हैं उनके रूल्स एक बार बता देती हूँ। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, उससे पहला रूल हमारा पॉजिटिव कि we speak English, दूसरा सेंस है रीड इंग्लिश। तो आपको आएगा कि जब भी सब्जेक्ट आई यू दे है तो हमें मेन करना है। जब भी कोई नाम को के साथ है, जैसे
हम रीटा स्पीक्स का है, यहाँ पे हमने एल लगाया, राइट। वी स्पीक इंग्लिश, ये नॉल रहा, तो हमारा पहला रूल है। उसके बाद हमारा दूसरा रूल था, जब भी हम निगेटिव सेंटेंस करते हैं, आई स्कूल होगा, डू नॉट गो, से हम बोलते हैं आई डोंट। ही गोज टू स्कूल का होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम फॉर्म यूज करते हैं द का एज इन, ओके। तो जेट हमारा आई, वी, यू, दे का पॉजिटिव करना है तो यूज करते हैं, निगेटिव जब करना है तो नॉट हमें यूज करना होता है। उसके बाद ही, शी, इट जब होता करते वक्त यूज करे हैं और नहीं करते वक्त डज नॉट। देख के तो कैसे हमने ये सिंपल प्रेजेंस के देखे ही इट, सिर्फ मैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब करते हैं तब ही इट जब भी है सेंटेंस में तो डस से हमें करनी है वाक्य। जो यहाँ पे हमने किया है डज ही हियर है, तो हमें, और जब जब वाक्य की शुरुआत करें हैं तो को ऐसी यस लगा की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही लीव हियर पर एस आया हुआ है, नीचे हमने लीव किया है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, यहाँ पे ने यस यूज किया है, डज ही लीव हियर किया है। तो इस केस से सारे सच है। ऐसे कोई बहुत ये आप समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो इस सेंस कुछ मिस्टेक है, तो आधा कमेंट के किया एग्जैक्ट तो इसमें कुछ एक क्या ही आंसर होगा, एक वाक्य, तो आप कमेंट में दीजिए जो ऐसे कर रहे हैं। जो नए जुड़े हैं तो आप बने रहिए, कि हम बहुत से टेंस भी सीखने वाले हैं, तो आप बने रहिए। यस, शी बुक ऐसी है और नो कमेंट लिखते हैं। ओके जी, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, हमारा बुक। ओके, हमने कहा कि अभी सेंस ही इट है, तो हमें वो यस लग है, तो ये पे शी रीड बुक, नॉट शी रीड अ बुक है। नेक्स्ट देखिए, writes a letter, they writes a letter, yes, they writes a letter। क्या क्या ये सही है या नहीं, बताइए। सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट में बताइए। यस, ओके। लास्ट में आप अगर मतलब रोल फिर सारी चीज करने वाले हैं, और ये कोर्स में हम कोशिश करें कि पर्सन के मुझे राइट्स लेटर का सही जवाब होगा दे राइटर, क्योंकि हमने ये सीखा कि आर यू अगर है उसके साथ यस लगा है। Let's see next question. He doesn't eat a mango. He doesn't eat a mango. ये इसका क्या है? क्योंकि from the ये गलत already मतलब बताया है कि find mistake, लेकिन find का इसमें क्या? Comment mixed mistake आपने अगर find की है तो yes. It's mango. इसमें क्या mistake है? Okay. He doesn't eat a mango. He doesn't eat mango. ये mistake. तो ये हमारा सेंटेंस हम देखें पास्ट टेंस। ओके, है आपको सिंपल पास्ट टेंस। अब तो सिंपल पास्ट क्या, मैंने पढ़ी हो गया है, हमारा पूरा गया है, मैंने भाई मैंने खा के हो गया है, मैंने पढ़ाई के भी हो गई है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो आए हैं सिंपल टेंस में। याद रखना है कि सिंपल टेंस में हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करना होता है, सेकंड फॉर्म वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होता है। एग्जांपल प्ले, रोट, एट, इस तरीके। अब देख कि हम लोग वर्ब देखो दो तरीके से,
अब ये एक होते हैं रेगुलर वर्ब जो ईडी लगा तो वो फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल ने लिया ईडी तो होगा प्लेड, ओके। वॉच को हिला दिया ई तो हो गया वॉच्ड, सो प्लेड वॉच। इसी के जो वर्ब होते हैं कुछ ईडी लग जाता है, जिनमें वर्ब सिर्फ ईडी जाता है, तो ये होते हैं रेगुलर। तो ये के जो रेगुलर होते हैं ये होता है इरेगुलर। इरेगुलर वो ऐसे हैं इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कैसे अलग होता है। फॉर एग्जांपल ईट हो गया, ईच, ईट मतलब टोटल डिफरेंट है, इसको हमने ईडी नहीं लगाया, थर्ड भी बिल्कुल डिफरेंट है। जो वर्ब्स होते हैं ये बोल है इरेगुलर वर्ब। गो, वेंट, गो बिल्कुल डिफरेंट है, वेंट डिफरेंट। इस तरीके के वर्ब्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, वो होते हैं इरेगुलर वर्ब। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं आपको 100 वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, 100 रेगुलर वर्ब्स के सारे नोट्स मिलेंगे और आप आसानी से सारी चीजें सीख सकते हैं। ओके, यस। तो देखते हैं अफर्मेटिव फॉर्म, पास्ट टेंस अफर्मेटिव फॉर्म देखते हैं। ही वेंट टू स्कूल। अब अगर ही गो टू स्कूल, हमने पहले क्या देखा है सिंपल प्रेजेंट में ही गो टू स्कूल हमने बोला था, बट यहाँ पे ही गोज टू स्कूल हमने बोला था, बट यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल मतलब हमने गो का पास्ट फॉर्म यूज किया है वेंट यहाँ पे। तो सब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। और इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप ना कुछ ये भी एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट, 5 years, ऑल डे, मतलब ये बात कितनी भी पुरानी हो सकती है, कल की हो सकती है, लास्ट नाइट मतलब कल रात की बात हो सकती है, 5 साल पहले की बात हो सकती है, ओके, 2 मिनट पहले की बात हो सकती है, ऑल डे की बात हो सकती है। और अभी देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है आई प्लेड क्रिकेट। ओके, पहले हमने सेंटेंस ऐसे इतना ही देखा था, आई प्लेड क्रिकेट, बट आप उसको जोड़ सकते हो लास्ट वीक। आई प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते क्रिकेट खेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी लीव लंदन फॉर 2 years, वो 2 साल तक लंदन में रही है। तो ये क्या हो गए सारे सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, तो फर्स्ट रूल इसका है कि सिंपल पास्ट टेंस का रूल ये है कि अभी सब्जेक्ट यू, शी, इट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें लगाना है। ओके, सब्जेक्ट कोई भी हो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। इसमें इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि एस लगाओ या ईएस लगाओ, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाना है। आसानी से अगर आपको ये सारे सेंटेंस देखने हैं तो देखो, उसके पीछे था, थे, थी, ऐसे वर्ड्स आते हैं। हमने स्टोरी लिखी थी, ओके, यहाँ पे लिखी थी होना चाहिए, लिखी हो गया है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है, तो वी रोट अ स्टोरी, हमने स्टोरी लिखी, तो ये हो गए सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंस। अगर आपको ऐसे कुछ सेंटेंस याद आ रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमें भी, मैं यहाँ पे सबको बता सकूं। यस एनवीबी, यस। निगेटिव फॉर्म देखते हैं। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल का निगेटिव फॉर्म हो सकता है, होता है ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, ही वेंट टू स्कूल का निगेटिव करते वक्त क्या हुआ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव करते हैं तो
हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट। ओके, सो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है whenever we are doing negative form. Let's see more examples. आप एग्जाम्पल्स बताइए कमेंट में। ओके, तो आपको ये नेगेटिव समझ में आया? नेगेटिव फॉर्म का रूल क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या है? कि जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है, तो निगेटिव करते वक्त आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ओके, गॉट इट? यस, वेरी। और एग्जांपल्स देखते हैं निगेटिव फॉर्म्स के। आई प्लेड क्रिकेट। ओके, इसका निगेटिव होगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, डिड नॉट की जगह आप डिड भी कर सकते हैं। आई डिडंट प्ले क्रिकेट। गॉट इट? उसका है वी रोट, हमने स्टोरी की, इसका होगा वी डिड नॉट राइट अ स्टोरी। ओके, तो हमने क्या अभी फॉर्मूला देखा कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो डिड नॉट के बाद आएगा राइट। ओके, रोट नहीं आएगा, राइट आएगा। वी डिड नॉट राइट अ स्टोरी। गॉट इट? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। हमें अगर किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो किस तरीके से हम सेंटेंस पूछेंगे ये हम देखेंगे। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल का निगेटिव करते वक्त, इंट्रोगेटिव करते वक्त होगा डिड ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल गया? ओके, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, यस। और सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यू प्लेड क्रिकेट। ओके, यू प्लेड क्रिकेट ये सेंटेंस है, और इसका अगर आपको पूछा जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो आपको करना होगा डिड यू प्ले क्रिकेट। ओके, डिड से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, डिड यू प्ले क्रिकेट। देन नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वी रोट अ स्टोरी। ये एक एग्जाम्पल है, इसका अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है तो आपको करना होगा डिड वी राइट अ स्टोरी। ओके, डिड वी राइट अ स्टोरी। इस तरीके से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते हो। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा है। अब ये फिर से आपके लिए मैं कुछ क्विज लेके आई हूं, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। वी ईट डिनर, अगर इसका सिंपल पास्ट टेंस बनाना है तो क्या आना चाहिए? आपको कमेंट में लिखना है। 5 सेकेंड का टाइम लेंगे हम लोग। वी ईट डिनर। यस मनदीप, करेक्ट। वी ईट डिनर, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं तो सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं जो भी वर्ब है उसका। तो वी एट डिनर इज अ करेक्ट सेंटेंस। वेरी गुड मनदीप। नेक्स्ट है दे डिड प्ले फुटबॉल। अब इसका अगर हमें करना है, इसमें क्या गलती है थोड़ा बताइए। दे डिड प्ले फुटबॉल। अगर नॉर्मल सेंटेंस इसका करना है अफर्मेटिव, तो क्या आना चाहिए? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, इसका आएगा दे प्लेड फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल, एनवीवी। वेरी गुड, करेक्ट।
दे प्लेड फुटबॉल। डिड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम तो नॉर्मल बना रहे हैं ना, सिंपल पास्ट टेंस, तो डिड की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, तो दे प्लेड फुटबॉल, यही करेक्ट आंसर है। वेरी गुड एनबीवी। एक और क्विज है आपके लिए, डिड शी लॉस्ट वेट? क्या मिस्टेक है इसमें? फाइंड द मिस्टेक। यस, चैट बॉक्स में लिखिए। कम ऑन फास्ट एवरीवन। यस, करेक्ट आंसर होगा डिड शी लूज वेट। हम क्या कर रहे हैं, ये डिड शी लॉस्ट वेट मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा डिड शी लूज वेट। लॉस्ट का मेन वर्ब क्या है, लूज है। तो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपको वो वर्ब सारे लर्न होंगे, और हमारे कोर्स में हम आपको मोर देन 100 रेगुलर वर्ब और 100 इरेगुलर वर्ब की लिस्ट देने वाले हैं। जितने ज्यादा आपको रेगुलर वर्ब्स पता है, इरेगुलर वर्ब्स पता है, उतनी आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अगर आपको मैथ सीखना है तो आप किस तरीके से ना टेबल्स लर्न कराते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं कि भाई मैथ सीखना है तो आपको टेबल्स आने चाहिए, तो आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन बहुत जल्दी करोगे क्योंकि आपको टेबल्स पता है। बट अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको वर्ब्स के सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए, तो ये आपको बाय हार्ट करना होगा। अगर वो आपने कर लिया तो आप इंग्लिश चुटकी में सीख जाओगे, डोंट वरी। ओके, और हमारे कोर्स में हम सारी डिटेल में करने वाले हैं, तो जस्ट रजिस्टर कीजिए हमारे कोर्स में, आप आसानी से सारी चीजें सीख जाओगे, डोंट वरी। आई टेक अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अभी ये एक और क्वेश्चन है, एक क्विज है आपके लिए, बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक है। यस, मी, एनवीवी, मनदीप, आई टुक अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। एनवीवी, वेरी गुड। ओके, आई टुक अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे वर्ब्स क्या कहते हैं, टेक, टुक, टेकन, सो वर्ब सेकेंड वर्ब क्या आएगा, टुक आएगा, राइट? तो एमवीवी, यू आर राइट, टुक इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई टुक अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, वेरी गुड। ओके, अब हम आए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ, सामान्य भविष्यकाल। ओके, लेट्स सी, हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस देखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस देखा है। अगर आपको जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि हम जब नया कोर्स हमारा जब 3 तारीख से शुरू होने वाला है, तो वहां पे हम सारी चीजें फिर से इजी वे में समझने वाले हैं और बहुत सारे क्विज एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, सो डोंट वरी, आप बस एनरोल कीजिए और हम सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हम तब देंगे। लेट्स सी, सिंपल फ्यूचर टेंस गाइस, we use simple future tense for upcoming future events and prediction. okay, फ्यूचर में कुछ होने वाला है ऐसा अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, ऐसा अगर हमें बोलना है, तो हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, अभी इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगी, मैं टीवी देखूंगा। ओके, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बस विल लगा देना है, विल प्लस मेन वर्ब लगाना है। ओके, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, बहुत ही सिंपल टेंस है ये फ्यूचर टेंस, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल लूज वेट। ओके, मैं वजन कम करूंगी,
फ्यूचर की बात है, हाँ भाई करूंगी कुछ दिनों बाद। शी विल स्लीप अर्ली, वो जल्दी सोएगी। ओके, हाँ अभी नहीं, काफी थोड़ी देर बाद सोएगी, बट वो जल्दी सोएगी, बता रहे हैं हम, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी बातें हमें जब करनी है तब हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अफर्मेटिव फॉर्म देखिए, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करूंगी, और आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करूंगी या मैं तुम्हें मदद करूंगा। अब आप पूछेंगे मैम दोनों सेंटेंस तो सेम लग रहे हैं और मीनिंग भी सेम है। यस, आई शैल हेल्प यू इज ऑल्सो करेक्ट, आई विल हेल्प यू इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही है। बट और इसका ये भी मैं बता देती हूँ कि जब भी यहाँ पे आप नीचे टेबल में देख सकते हैं कि जब सेंटेंस में ही है तो हम शैल का यूज कर सकते हैं, एंड यू, ही, शी, इट है तो विल का यूज कर सकते हैं। बट आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है तो हम आई के साथ विल भी यूज करते हैं और वी के साथ भी विल यूज करते हैं। शैल का यूज हम बहुत कम यूज करते हैं, बट अगर कहीं पे शैल का यूज हुआ तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आई वी के साथ शैल का यूज भी होता है। आई विल हेल्प यू भी बोल सकते हैं, आई शैल हेल्प यू भी बोल सकते हैं। बट नॉर्मली आजकल आई विल हेल्प यू का ही प्रयोग ज्यादा होता है। वी विल हेल्प यू ऐसा भी बोल सकते हैं, तो आई विल बोल सकते हैं, वी विल बोल सकते हैं, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल। सो सिंपली अगर आपने फ्यूचर टेंस के लिए will याद रखा तो भी आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, और सेंटेंस देखते हैं। आई विल सी यू ऑन मंडे, ओके, मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगा। इंडिया विल विन द मैच टुडे, ओके, शाम को मैच होगी तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया मैच आज जीतेगी। ओके, तो ऐसे कुछ सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं। ओके, निगेटिव फॉर्म देखिए, निगेटिव फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है शी विल स्लीप अर्ली, शी विल नॉट स्लीप अर्ली। ओके, शी विल नॉट स्लीप अर्ली, तो इस तरीके के आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके, विल नॉट की जगह आप वोंट यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई विल वॉच टीवी का निगेटिव होगा आई विल नॉट वॉच टीवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, विल आई हेल्प यू, विल ही गो टू स्कूल, विल शी स्लीप अर्ली, तो ऐसे सारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है सारी चीजें। ओके, तो ये सारे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स और सारी चीजें हमने आज सीखी है। आई होप आप लोगों को सारे समझ में आ गए हैं। तो ये सारे रूल्स है, आई विल वॉच टीवी, ये हमारा पहला रूल है, मतलब ही, आई, वी, यू, ही, शी, इट, कुछ भी हो आप विल प्लस मेन वर्ब लगाते हैं। उसके बाद है आई विल हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू, निगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देन होगा विल आई हेल्प यू, विल के बाद हो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम था, इसलिए हमने आज 3 टेंस सीखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो अगर आप मेन कोर्स में एनरोल करते हैं जो 3 तारीख से शुरू हो रहा है, ओके, तो आप यहाँ पे एनरोल कीजिए, आपको ये सारे चार्ट्स मिलेंगे, सारी चीजें बड़ी आसानी से मिलेंगी, तो बी देयर इन क्लास।
हम सारी चीजें बड़ी डिटेल में सीखेंगे, स्पोकन इंग्लिश कवर करने वाले हैं और सारी ग्रामर की कंसेप्ट भी कवर करने वाले हैं। तो आप चाहे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई स्टूडेंट्स हो, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, जो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ऑफर किया गया है। तो आप रजिस्टर कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और में मिलते हैं। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।